friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the 3-year LLB entrance exam paper of MDU Maharshi Dhyanand University Rohtak for the year 2019. So friends, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी, तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए, इस पेपर से पहले हम जो है 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 2022 एंड 2021. देखिए 2020 में तो ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड जो है एग्ज़ाम हुआ नहीं था एंट्रेंस, तो उससे पहले 2019 में हुआ था. तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो पेपर कम्स लाइक दिस. सीरीज ए 75 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. यू हैव टू फिल दिस ऑल and there is no negative marking. So question number 1 is which of the following is correctly spelled. स्पेलिंग बतानी है करेक्टली. हिरार्की की स्पेलिंग पूछ रहे हैं यहाँ पर. ये इसमें कौन सी ठीक है? तो ये क्या होता है, हायरार्की बोलते हैं, तो हाई HI होता है इसमें. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड. अब बताना गलत कौन सा है इसमें से. पार्सिमोनियस, ये गलत है इसमें. ये होता है पार्सिमोनियस, मतलब जो कंजूस होता है ना, सोच समझ के खर्च करे, उसको बोलते हैं पार्सिमोनियस. तो इसमें ये 1 ही रॉन्ग हो गया, बाकी ये ठीक है. नेक्स्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू जेलस. जेलस का क्या होता है, पैशनेट. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू इनएडवर्टेंट, मतलब अनइंटेंशनल. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू ग्रेव. That is inconsequential. 2 is the answer. Next 6, which of the following is opposite in the meaning of eulogy. क्या होता है, censure. 2 is the answer. eulogy क्या होता है, किसी को appreciate करना posthumously, मतलब उनके डेथ के बाद. censure क्या होता है, मतलब stop कर देना, कुछ restrictions लगा देना. Next 7, it is due to this lethargy that the plan fell through. खराब हो गया प्लान. 3 is the answer. Next 8, my father has been advised to cut down his smoking. 1 is the answer. Next is 9, food was packed and they set off a merry delighted party. 4 is the answer. Next 10, a roundabout way of expression. क्या बोलते हैं, circumlocution. 3 is the answer. Next 11, favoritism shown by a person in power to his relatives. क्या होता है ये, nepotism. 3 is the answer. Next 12, cultural dash is very important in international business. Sensitivity or sensibility? Sensibility. 1 is the answer. Next 13, the government's handling of the situation led to flagrant violation of human rights. 4 is the answer. Next 14, I dash very much like to see my old classmate. I would like very much. 3 is the answer. Next 15, the ship as well as its crew dash gone to bottom of the sea. Has gone. As well as आ गया तो has आएगा. Next 16, the jury dash divided on this issue. Jury are, jury मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जूरी में, एक पर्सन नहीं होता, तो इसलिए आर यूज होता है. jury are divided. तो 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 17, द ट्विन्स लुक सो एग्जैक्टली अलाइक दैट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 18, सिंस द प्रिजनर्स वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, क्वेश्चनिंग हिम इन डिटेल वाज नॉट ईजी. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 19, आई नो dash certain that he had gene to England.
ये जी नहीं, यहाँ पर गॉन होगा। आई नो फॉर सर्टेन दैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, ये बनेगा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 20, वी अंडरस्टूड द पोएम आफ्टर द टीचर डैश इट टू अस, द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड इट टू अस। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 21, it would have been better if they had not left. 2 is the answer. Next 22, I dash I will come and see you if I have time. देखिए ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, ये 3 LB के एग्जाम में देख सकते हैं आप, जो प्रीवियस ईयर डिस्कस किया है वहाँ पर भी था ये, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, they were hungry because they had nothing, 2 बार had आता है इसमें। 2 is the answer. Next 24, as he was getting off, it started with a jerk. 4 is the answer. Next 25, if you arrived 10 minutes earlier, you would, मतलब if है तो would आएगा obviously, get a seat. 1 is the answer. अगला है 26, यहाँ से हिंदी शुरू हो गई अब। कनक नकते सो गुनी मादकता अधिकाय, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, कितनी बारी पूछ चुके हैं ये, यमक अलंकार है ये। 4 इज द आंसर, एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट हो गया है ये तो। फिर 27, कफन बूढ़ी काकी शतरंज के खिलाड़ी, किसकी कहानियां हैं ये? प्रेमचंद की। 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 28, विधवा तोड़ती पत्थर बादल राग, किसकी कविताएं हैं ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1 इज द आंसर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले जब हमने 20-21 वाला जो किया था उसमें पूछा गया था ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है। अगला भी 29, रामचरितमानस के रचिता कौन है? तुलसीदास। 3 इसका उत्तर है। अगला है 30, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, देख लो मिल जाएगा, डिट्टो क्वेश्चन। 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 31, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, सारे लाइन में ही पूछ रहे हैं तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से, कि श्री में दोनों बड़ी की मात्रा आती हैं। 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 32, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? शब्द लिखना चाहिए ना, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार। 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 33, फिर से बताना है कौन सा शुद्ध है? सन्यासी। 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 34, ये भी देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये। आशीर्वाद, बड़ा ई की मात्रा और वा के ऊपर रह, तो 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 35, निम्नलिखित शब्दों में से आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुने। आयुष्मती। 2 इसका उत्तर रहेगा, बड़ी की मात्रा आएगी मती में। फिर 36, काव्य रचना करने वाली स्त्री के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? कवयित्री, पर यह में छोटी की मात्रा आएगी, तो 3 इसका उत्तर रहेगा, और ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। अगला 37, माता पिता में कौन सा समास है? देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, द्वंद्व समास है ये। 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 38, उपकार को न मानने वाला कौन होता है? कृतघ्न। 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 39, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा वृक्ष का पर्याय नहीं है? तरु, विपट, तरुणी, ये नहीं है। 3 इसका उत्तर रहेगा। तरुणी क्या होता है? स्त्री। अगला 40, अनुज शब्द का विलोम है अग्रज। 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 41, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 42, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है जिजीविषा। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, पिछले वाले जो 2021 का पेपर वहाँ देख लीजिए, मिल जाएगा। अगला 43, कलेजे पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जलना। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। सारे मतलब 2019 वाला पेपर जो है 2021 में ऐसे कैसे उठा के दे दिया, लग रहा है इतने वो हो गए। अब देख लो, अगला देख लो 44, तपोवन, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। तप प्लस 1, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 45, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कृपया, कृपया होता है ना, आधा पे आएगा, तो 1 इसका उत्तर रहेगा। अब ये आगे लॉ के क्वेश्चन नंबर 46, डाइन डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। 4 इज द आंसर। अब देखिए, आप जो
LLB की एंट्रेंस का एग्जाम ले रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जुडिशरी टाइप के। डैंग डिक्लेरेशन के बारे में हम नेक्स्ट 47 फिर से DD टू बी एडमिसिबल मस्ट बी मेड बिफोर एनी पर्सन। 4 इज द आंसर। किसी के सामने भी हो सकता है डैंग डिक्लेरेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, जुडिशरी टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रहे हैं। और अगला 48 एक्सपर्ट ओपिनियन एज एविडेंस। यार क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या सोच रहे हैं कि भाई जो बंदा एंट्रेंस देने आ रहा है LLB में जिसने एडमिशन लेना है वो पहले सारे ये बेरेक्स पढ़ के आए क्या होता है सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव। 3 इज द आंसर। ये तो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है पहले सारे बेरेक्स के जैसे जुडिशरी कोचिंग होती है ना, वो कोचिंग लेके फिर LLB का एंट्रेंस दो। Next 49, photostat copy of a family settlement is allowed to be produced before court as secondary evidence. 3 is the answer. Next 50, preliminary decree can be passed in a suit for partition, mean profit, partnership, all of the above. 4 is the answer. देखिए ये टोटली मैं कहूँगा इनजस्टिस है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने क्वेश्चन डीप क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, और ये कहाँ मेंशन किया गया है, ऑर्डर 20 ऑफ CPC में, वहीं पर रूल्स लिखे हैं उनमें हैं ये। नेक्स्ट 51, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इज पेकुनियरी हो सकता है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, ऑल ऑफ द अबव। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, इन अ सूट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैज टू बी फाइल्ड बाय द पार्टीज आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज। 2 इज द आंसर। बताओ इतना डीप क्वेश्चन, बताओ। ओहो, इशू फ्रेम होंगे और ये मतलब एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऑर्डर 16 रूल 1 ऑफ CPC। नेक्स्ट 53, हु कैन बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो मैन और वुमेन दोनों को कर सकते हैं, माइनर को नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए ऑप्शन ये ठीक नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता फॉर मनी डिक्री तो उस केस में सिर्फ मैन आता। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा गलत हो गया। नेक्स्ट 54, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज वॉइड। 2 इज द आंसर। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 55, ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom the guarantee is given, या फिर who gives the guarantee in respect of default guarantee is given. To whom? 1 is the answer. कहाँ पर लिखा हुआ इनके बारे में? सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 57, अ गारंटी हैज़ टू बी इन राइटिंग या फिर ओरल हो सकती है। कैन बी ओरल और इन राइटिंग, दोनों हो सकते हैं। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर होना चाहिए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकी जरूरत नहीं है। 1 इज द आंसर। इनमें से ये नेसेसरी है, बाकी तो बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट 59, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज क्या होता है? वॉइड। 1 इज द आंसर। अगला 16, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। 1 इज द आंसर। डेफिनेशन है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। यार मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं या फिर LLB एंट्रेंस का है। ये टोटली ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे जुडिशरी पेपर आता है। नेक्स्ट 61, कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इज कमेंसुरेट विद प्रिंसिपल एंड एजेंट। कमेंसुरेट मतलब क्या होता है भाई? रिजेंबल्स लाइक, नो। तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 62, a firm can be dissolved with the consent of all partners in accordance with the contract between partners both 1 and 2. 3 is the answer. Next 63, a right to pluck fruits and carry away appropriate is a movable property. अब तोड़ के लेके जा रहे हैं ना, तो movable हो गया फिर वो। 3 is the answer. Next 64, preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary, permanent. Yes, 1 is the answer. सेक्शन 36 में लिखा हुआ है ये, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। बताओ इतने सारे एक्ट्स पढ़ो पहले, फिर एंट्रेंस दो, तो वैसे ही ना जज बन जाएंगे फिर तो। नेक्स्ट 65, एन आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्सेबल एट द सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 66, चाणक्य वाज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम। क्या नाम था उनका? विष्णुगुप्त। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 67, हु रोट कुमार संभव। कुमार संभव किसने लिखी है? कालिदास ने। 3 इज द आंसर।
Next 68. Who is credited to abolish Sati Pratha and Thagi in India? That was Lord William Bentinck. One is the answer. Next 69. Rayatwari system of agriculture was introduced by Sir Thomas Munro. Two is the answer. सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? ये मद्रास में. ये भी पूछा हुआ है ये एंट्रेंस में. नेक्स्ट 70. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग दी गवर्नर जनरलशिप ऑफ, मतलब जिस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 71. फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789. 2 इज द आंसर. Next 72. The earth revolves on its axis from west to east. 1 is the answer. Next 73. Which of the following is largest river of the world? That is Nile River. 3 is the answer. ये डैनबू नहीं है, डैन्यूब है ये मिसिसिपी शिप्पी नहीं है ये. Next 74. Narmada River originates from Amarkantak. 3 is the answer. Next 75. Which of the following is known as Manchester of Japan? That is Osaka. 2 is the answer. Next 76. The number of coastal states in India is 9. कैसे कैसे देखो, पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. तो कितने हो गए? 4 इधर हैं, 5 इधर हैं. आप सोचोगे तेलंगाना कहाँ गया? तेलंगाना इधर रह गया बीच में. Next 77. What is the percentage of oxygen in the atmospheric air? That is 21%. 3 is the answer. Next 78. Round revolution is related to potato production. 2 is the answer. Next 79. Vande Mataram, the national song, is a part of which book? Anand Math. 1 is the answer. और किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय. Next 80. Custodian of fundamental right is judiciary, obviously. 1 is the answer. Next 81. Article 356 deals with state emergency. 352 national है and 356 is state emergency. और उसको क्या बोलते हैं? presidential rule. 3 is the answer. And financial emergency कहाँ पर है? 360. Article 360. तो 3 इसका आंसर रहेगा. Next 82. Who of the following president was elected unopposed? वो थे नीलम संजीवा रेड्डी. 3 is the answer. Next 83. Who of the following decides whether a bill is a money bill or not? तो Speaker of Lok Sabha will decide. This is also a repeat question from 2021 paper entrance exam. Next 84. Which of the following president has worked with 4 prime ministers? तो शंकर दयाल शर्मा. 1 is the answer. Next 85. The quorum of Lok Sabha and Rajya Sabha meeting is 1/10 of total members. 3 is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. Next 86. In India, Consumer Protection Act was first passed in 1986. अब कौन सा आ गया? 2019 वाला. इसको रिपील कर दिया गया है. Next 87. Zero based budget came into existence in India with 7th 5-year plan. 2 is the answer. ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. Next 88. Who is the originator of Operation Flood with White Revolution? वर्गीस कुरियन. 3 is the answer. ये पूछ रहे हैं इन इंडिया, है ना? तो वर्गीस कुरियन थे. नॉर्मन बोरलॉग ये वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था. Next 89. In which year the Kisan Credit Card Plan was started? 1998. 3 is the answer. Next 90. All enzymes are protein. 2 is the answer. Next 91. What is the normal pH of human blood? 7.5 to 8. 3 is the answer. Next 92. What do you mean by ALU in context of computer? Arithmetic logical unit. 2 is the answer. Next 93. Atal Ayushman Plan in 2018 was started. ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था. आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट करंट अफेयर्स में देखते रहिए, कोई कहीं पर कोई प्लान अगर स्टार्ट हो रहा है तो. Next 94. Which state emerged as the first state to provide 10% reservation to economically backward general category people? That was Gujarat. 3 was the answer.
नेक्स्ट 95 9th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन, देखिए ये हुआ था 9th वाला जियामिन चाइना में, ठीक है। अभी जो हुआ है 23 जून 2022 में, कहाँ पर हुआ था ये? बीजिंग चाइना में हुआ था, ठीक है, वो था 14th। ओके, अब जो होना है वो होना है अगस्त 2023 में, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो अब ये 15th वाला होगा। नेक्स्ट 96 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द बिगिनिंग ऑफ वन फैमिली वन जॉब प्लान इन 2019। देखिए करंट अफेयर से है ना ये, सिक्किम गवर्नमेंट थी, दो इसका आंसर था। नेक्स्ट 97 जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सी थी? 101 101st अमेंडमेंट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 98 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया बाय सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल 2018, मतलब गुरुग्राम, 1 वाज द आंसर। नेक्स्ट 99 द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हेड है वो कौन है? कैथरीन रसल। नेक्स्ट 100 नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 1st January 2015, 1 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of LLB 3-year entrance exam paper of MDU Rohtak for year 2019. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन या कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.